Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vasishta Knowledge Sessions Study Group Evening Sessions. Today we are on 37th session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सायंकाल के अभ्यास सत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 37th सेशन पे है, 37वें सेशन पे है। तो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज। अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दें। सिट कंफर्टेबली, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे, खाली हो जाए। गुरुदेव कहते हैं भूतकाल त्याग करने योग्य है। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस नए वर्तमान क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम 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 पुनः पुनः। गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक
अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे इम्प्रेशंस, संस्कार, और जिसकी वजह से अपना अस्तित्व है, वह अहम का भाव, वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुक्ति की राह पे चलने वाले हम लोग, मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग, यदि गुरु कृपा से इस क्षण मुक्त हो जाए तो उर्वरित जीवन और सेवा के कारण यहाँ पे लौट के आना भी पड़े तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सान्निध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज। जय गुरुदेव, वेलकम बैक। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी पुनः एक बार इस सत्र में स्वागत है। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। विल कवर फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन विल सी, हम लोग उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। सो वी आर गोइंग थ्रू योग वाशिष्ठ chapter number 3, and we are in the sub chapter number 24. If you are referring to the book called Subodh Yog Vashishtha by Suman Mahadevkarji, then this reference will work. Even if the other book is there, Hindi or English, the flow kind of remains same. So we are in the third chapter. We are discussing Utpatti Prakaran, creation of this entire universe, where Vashishtha Muni is giving a supreme knowledge to Prabhu Ramchandra Ji based on the questions Prabhu Ramchandra Ji have raised in front of him. So the first Atma Gyan, the first knowledge that Vashishtha Muni gives him, the chronological order of this entire universe, how this entire universe is created, how it is created with the when that being just reflected, with because of the vishayas, the outward attractions, the chitta gets formed. That's called chaitya, and the chitta gets formed, and in that chitta, just to imagine, because of its aham, that I am something, it starts projecting, it starts imagining this entire world. So all the sequence is shown, all the chinmatras and tanmatras come into picture, and all the 5 elements comes into picture, and how this entire universe is getting created. So we have seen all that. So he says that as it is appearing just in the imagination of chitta, of that thing which we do not know, but we call it as consciousness, Atma, Brahman, Shiva, with whatever name we call, it is really immaterial. It is that coming into existence, just because of that it feels something going outward, and it takes the form of a chitta, and all the imagination starts from there. So Vashishtha is telling me in this supreme knowledge that this everything is that consciousness, everything is Brahman, and this Drishya Jagat, as it is just in the chitta, just in the mind, created in the mind, this Jagat is not real. This is unreal world. This is the basic theme line, basic learning in this chapter. Now to explain this in detail, Vashishtha Muni starts telling him various stories. We have seen the story of Leelavati, Saraswati and Padmaraja, and their birth, past birth, future birth, and how this entire journey goes on. We have seen that in detail. Here also in between, Vashishtha Muni keeps on giving knowledge, Rama keeps on asking question,
and this journey continues. In between, we have seen how Lilavati, Padmaraja, Vidruta keep asking question to Goddess Saraswati, and she also gave them the knowledge. So we have seen all that happening till now. Now, once this story is concluded and the Padmaraja and the Lilavati, ultimately they get the Deha Mukti, means their time is finished, they passes away and they becomes Mukt. No? They attain the liberation, moksha. Now, after finishing this story, now Rama is still, he expressed the gratitude, that he thanks Vashishta Muni, that thank you so much. You have given me such a wonderful insights and I'm getting it now. There are many things which are clear to me now. Yet there are few questions that I have. So that he keep on asking those questions and Vashishta Muni keeps on giving answers to that. And we are going through that step by step now. So it is being said that this particular body, the grassroots level body, is nothing but it is an expression of the chitta. It is just an expression of your bhavana, the feelings that comes, and whatever, if it becomes very drud means it becomes firmly established within you, then it automatically starts reflecting outside. Usually our understanding is that whatever we see outside, we perceive it through our senses and then we understand it internally. Here Vashishta Muni is reversing the entire flow. He says that it actually comes first in your feelings, in your vichara. You pick up one thought, it becomes your associated feeling with very firmly established, and then the same thing start reflecting outside. So whatever is from this entire Jagat, this universe, is actually from inside first in the Chitta itself, and then it starts reflecting outside. So he's very clear about this. So that is what happens. So here the saransh, this whatever the things that Vashishta Muni is explaining, this is the saransh, that this Chitta, just by its parampara, I mean if you see the chronological order of creation of this universe, it exactly follows these things. It comes, the chitta comes into picture and then it's all start reflecting it. No? So it is just like the entire tree, the vruksha, have its beej into the seed. No? So it is similar, like this entire universe has its seed just in the chitta. So how this body operates then? This body just operates on the level of dharma. No? Whatever the things that manifests in the, or the at the thought level in the chitta, same thing manifests in the form of, at the body level, expressed through the body in the form of a karma. So it is that ahankara, that I am, this feelings comes into picture, and that is how it all these things created. But it is just illusionary, it is just imaginary, just in the mind itself. So he is very clear about this. So he says this one sentence, the entire scripture, the entire Yoga Vashishta summary and the saransh is presented. Just this one sentence, that Mulataha, this particular jiva, what we are calling jiva, is actually the Shiva. Realizing you jiva as Shiva or the Brahman or the consciousness or the awareness, whatever you call, is the knowledge, no? And everything else other than that, whatever we see outside, is just an illusion. So that is the saransh, that is the under bottom line of this entire scripture. So then he further continued to add to this, that he says this Atma Bodh means self-aware, self-knowledge, Atma Bodh. No, this is the true thing that will give you the Paramananda, that will give you the Chidananda. That if whatever Ananda, that Sukha, that happiness that we tend to experience through the outer worldly matter, they are very, very temporary in nature.
If you are looking for the ananda, if you are looking for that love, if you are looking for that joy, which is not shaken, which is not influenced by external things, which is not dependent upon any external object, any external situation, or external people. No, you are just established in yourself, you are with yourself, and that experience, you experience that ananda, that joy is permanent in nature. No? So here it is like that this Manusha, this is just nothing but it has been there, just a form of a chinmatra. So this, once this chitta disappear, means the mind becomes the no mind. अमन कैसे? अमन, माने क्या? जहां पे मन नहीं है. अमन माने शांति. अमन का मीनिंग होता है शांति. So where the mind is not there, the no mind condition itself represent the shanti, the peace. So he says that the moment by effort, by abhyasa, we learn to drop this mind, automatically the outer expressions, the outer associated sukha and dukkha, the outer associated attractions of the vishayas, those indriyas, the outward associated different negative emotions, Kam, Krodha, Lobha, Mara, Moha, Matsara, and all the different vishayas, indriyas, that thing appear to automatically removed. It is automatically nashta ho jata automatically. The moment your mind is dissolved, all these things automatically dissolve and you become free from that. And whole purpose to hai. The purpose of that is to dissolve your mind and get ourselves detached, retrieved within self by dropping all these other outward cravings. So this is the thing. So the one who realized this Atma Bodh, the one who realized this self-knowledge, for them, even though the it's just like the potter, no, he's working on that, and just like that chakra, that wheel keeps rotating. So for the people who have not realized, they just see this all thing just like that. No, this jagat is all moving, it's all rotating and all that. But for the one who is at the center, for the center of the wheel, is it rotating? No, there is no movement, there is no action. It is just at the center, just be shant. No movement is there. So realizing this knowledge, one can still continue to do this thing. Now, how is that needs to be achieved? What are the different states? So it explained in detail the different states of our consciousness. Now we have already seen that yesterday also, and we'll repeat it now also. So we have seen all these 5 avasthas, no? The Jagruti avastha. The Jagruti avastha means your indriya are through your 5 senses, you are experiencing the outward matter, the Vishaya. That state is called as Jagruta avastha. You are Jagrut, you are perceiving, your perception is continuing. You are in a Jagruta avastha. Then the next avastha is said to be Swapna avastha. Now, what is this Swapna avastha? That you are being with your aham, that aham bhavana is there, and through that, inside your inner mind, antaryami isko kahya, there itself you start experiencing the vasanas, no? The vishaya and the associated sansara. How? Just in the imagination itself. No, your eyes are closed, you are lying down, and but still at the level of your mind, you are experiencing the swapna. Means you are experiencing the sansara via vasanas, via these cravings, you imagining the world. That is nothing but swapna. Then there is a third avastha called sushupti. The sushupti means you are sleeping and there are no dreams. So this is a deep sleep. No, it's called sushupti avastha, where you are sleeping. Nidra avastha is there, but you are completely in a deep sleep. There are no dreams. No, that avastha is called sushupti avastha. Then after this,
there is one more avastha is explained as Turiya avastha. What is Turiya avastha? Turiya avastha means that you are just remain as the chin matra, means you are jagrut also, not fully jagrut, but you are just not in any one of the state. No, you are not sleeping, you are neither dreaming, and you are not fully jagrut. No, away from these three states or the combination of these three states, you are just in a Turiya avastha. You are established. And then there is another avastha that is explained is the Turiya Tit. Means you are that pure consciousness. No, the Sanmatra is what is called as. No, you are just in that. You are being one with the Paramatma, the Brahman, the Shivam, Shivoham, Shivoham. You experience that Tadrup. You are that one, and then you become Niramaya. Means there are no thoughtless process. No, you just retrieve yourself completely, and you just establish you within yourself. No, that avastha is the Turiyatit avastha. So our objective of our worldly thing is to achieve that Turiya avastha and ultimately go into Turiyatit avastha. No? So when we experience, if we kind of start digging into the earth, what happens? You dig, and then what did you see there? Is the emptiness, the pokri, the akash. Nothing is there. You just start digging more, you'll see there is more empty space. No? So likewise, even though it appears that this space is actually the reason for the tree to grow, but actually that space is not a reason for tree to grow. It is just allowing it to grow. Similarly, we think that it is the Paramatma, the Brahman, the conscious, the Shiva. It is the reason we inform this world. Actually, it has no such reason. No, it is not. It is just appearing so associated with that. We think that he is the reason behind this. He did not have any reason to come this. No, it was just the imagination formed because it just came out. He forgot his own mool swarupa. He forgot his own nature. No, and because of that only all this thing, it just started happening on its own. So that is what is very well explained here. So if we see that if there is a tree and the tree has a seed and then it gets sprouted and then it gets develops the leaves and then the flower comes and then the fruit comes. Similarly, this Krama also is that in the Chinmatra Brahma, there is the creation of the Chaitya, there is the creation of this Chitta, and then in this Chitta itself, the mind gets formed. The Manana, the thoughts over there, and the Manana gets formed. So this Man gets formed. So that is the chronological order that is explained here. So now Ram is also intelligent. He also keeps asking question that he asks that if we see this analogy of this Bija and Uruksha and compare that with the Brahma Gyan, the Atma Bodh, the Gyan, that I am Brahman, I am that. And this Gyan of this Chidarup is nothing but I am also the same. No, so despite of knowing this knowledge, does that Bij stops being the tree? No. By knowing this Atma Gyan, does this Srishti cease to exist? Or does it stop being created? No. It is that creation is happening continuously. The Laya is also happening continuously, means it's continuously getting dissolved. By me knowing it, does it make any difference to it? No. Then why do you know this knowledge? So Rama is very intelligent. He keeps asking such. He said this Tattva Dhyana is Nishpal. What is the use of this knowing this? Anyway, there is no control. Anyway, that whatever has to happen to that bija, that seed, it will anyway sprout. Anyway, this Srishti is getting created and it's getting dissolved. What is the point in knowing it? How it will help me? So Vasishtha Muni explains that look, this bija and getting it into Vriksha, this entire philosophy is based on the duality. No, there is a bhed.
Veda Tattva is very nihit in your niyati. And this is based on that. Contrary to this knowledge that we are looking at, this is based upon not Dvaita, means not duality, it is based on non-duality. It is based on the experience of ourself with that what we are. No, so it is the matter of not understanding with a mind, with at the level of just a buddhi, but it is the matter of your own experience. So we cannot compare really that with this, no? So that is something different. That is completely depends upon duality. This completely depends upon non-duality, no? So that aspect of that Bija and Vriksha does not apply to this, because what it is just the Brahma Sarupa Chinmaya, no? That is Bhedara, it means there is no duality, and it is Ananta in nature. And that is what happens when we start exploring this knowledge, or even from a science perspective. At one point of time we come at a level where we see, oh, there is so much to know more. I really do not, whatever I know is very, very little. No, there is so much to know more. And then that why turns into wow. That you become amazed about this entire creation. Wow. No? So that wow comes into picture. So he expressed like that. Then the way all those things that it is being said, all these different sukha and dukkha and all these different feelings, negative emotions that we experience, the moment this chitta becomes a chiddadana, means it becomes one with the Paramatma, no, one with the divinity, then automatically all the outward things automatically becomes shant. And when that happens, that Purusha is being called Jivan Mukta. That itself is the Mukti. That itself is the Moksha. No? When we are able to drop this. No? This. So now, Prabhu Ramchandra ji also asked that Bhagavan, if this meditation and this knowledge is just the vyavara, means just the business of this chitta, and all these movements seems to stop when this chitta disappear, how can we say this? It seems to be continuous in nature. How can we say that but just by dropping this chitta it will happen? No, that is where Vasishtha Muni again reminds him the chronological order of this creation, that this creation itself is formed in the chitta. So if the chitta itself is not there, automatically all these things will cease to exist, because this all spurana that is there because of that visha. Visha means the five senses going outward and getting attracted to other things. It is just that spurana is there. Because of that, this chitta saugya is formed. This chitta has come into. If just that chitta itself disappear, automatically all these other things also will disappear. So Rama again asks him that if this chitta itself is not there, this mind itself is not there, how will one lead this life? No. So there Vasishtha Muni explains that such people who have established in their own self, established in themselves, their mind is dissolved. These people just do their routine, daily routine based on their prarabdha, based on their past sanchit karma they have to do. They are not forming any new karma, because there is nothing left for them to, I want to do this, I want to do that. Whatever the routine actions they do, no, just as a part of prarabdha, just they want to do it. They have to do some karma till they are here. They will just appear to do their karma. So then he also says that, okay, you have explained this, all these things fine. So if this Brahma Gyan, if this Tattva Dhyan is so simple,
Why do we need to do prayatna itself? No, if it is so easy that even at the close of your eyes, just your lid of your eye closes, within that time frame you can attain this knowledge. Then why we have to put an effort? इतना सब करने की झंझट करने की जरूरत क्या है? Also, Vashishta Muni explains him that because of the past sanchit karma, because of the past sanskara, no, because of the past, all the information that we gathered from outside this world, it has firmly established in you in the form of sanskara, and it takes some abhyasa, it takes some time for some people to get into this state of mind. And to do that, to attain that state, these all the other prayatnas are important. It is the training of your thought process. No, you have to reprocess, continue with your thought process. That is when one can experience this. So with that note, this chapter number 24 comes to an end here. From tomorrow, we'll see there is a very beautiful story of Karkati Rakshasi. So we'll go into that story tomorrow. अभी के लिए हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं और फिर आपके लिए हम इस सत्र को खुला कर देंगे चर्चा करने के लिए. तो अभी हम लोग फिलहाल तीसरे प्रकरण में हैं, चैप्टर नंबर 3. उत्पत्ति प्रकरण यहाँ पे देख रहे हैं. वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को उत्पत्ति का पूरा सीक्वेंस ऑर्डर में बताते हैं, किस तरह से जो ब्रह्मन रहते हैं, जो शिव रहते हैं, किसी भी नाम से आप पुकारो, कॉन्शियसनेस, चैतन्य, आत्मान, व्हाटएवर, उसके मन में विषय पैदा हो जाता है. विषय माने एक आउटर वर्ड कि मुझे कुछ करना है, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं और मुझे कुछ करने की इच्छा जागृत होना, वो विषय माने चैत्य इसको बोला गया. तो वहीं पे उस चैत्य की वजह से चित्त का निर्माण हो जाता है और चैत्य और चित्त दोनों को मिलके वहां पे मनन शुरू कर देता है कि मुझे क्या करना है, सोचना शुरू कर देता है. तो बोलते फिर मनन की वजह से मन भी हुआ, मतलब चित्त माने मन, तो वो मन वहां पे आ जाता है. जो मन जो सोचता है कि मुझे ये ऐसा करना है, वैसा करना है, उस तरह से वो फिर वो निर्माण करना शुरू कर देता है. और उसका सीक्वेंस बताया गया कि किस तरह से अपने सारे पंच तन मात्रा आ जाते हैं, फिर किस तरह से अपने सारे 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं, किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है मन ही मन में, जस्ट लाइक अ ड्रीम. वो पूरा वहां पे बताते हैं और बोलते हैं फिर कि यह जो सत्य है वो एक ही वही ब्रह्मन, एक ही शिव वही सत्य है. उसके अलावा ये जो है यह सब चित्त में एक भ्रम की तरह यह उत्पन्न हुआ है. इसीलिए ये राम आप जान लो, इसका दृढ़ निश्चय कर लो कि यह जगत मिथ्या है, यह जगत सत्य नहीं, असत्य जग है. इस तरह से ज्ञान बताते हैं और इसको समझाने के लिए फिर मंडपाख्यान लीला सरस्वती पद्मराजा की कहानी यहाँ पे सुनाते हैं. हमने पूरी कहानी अच्छे से देखी, समझी और उसका ज्ञान भी हमने देखा कि वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को ज्ञान देते रहते, बीच में प्रभु रामचंद्र जी प्रश्न पूछते रहते और किस तरह से लीला पद्मराजा और विदुरथ भी सरस्वती देवी को प्रश्न पूछते हैं और वहां से हमें यह ज्ञान सारा देखने को मिला. तो इस तरह से जब वो स्टोरी समाप्त हो जाती है, वो पद्मराजा और लीलावती विदेह मुक्ति माने they passes away and then they get moksha. Now continuing this, when this story ends, Prabhu Ramchandra ji starts asking question. First, पहले तो वो वशिष्ठ मुनि का बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड, अपना जो भाव है उसको व्यक्त करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि बहुत कुछ तो समझ में आ गया, बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन अभी भी थोड़ा कुछ बाकी है, पिक्चर अभी भी थोड़ी बाकी है. तो कृपया हमें बताएं कि यह किस तरह से होता है. कुछ कुछ प्रश्न वहां पे पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि शुरुआत करते हैं, यह जो अपना शरीर है, यह जो अपना देह है, यह देह एक्चुअल में मन ही, अपना चित्त ही जो होता है वही व्यक्त करता है. अपने को ऐसा लगता है कि हम लोग बाहर से कुछ चीजें आंखों से देखते हैं, कुछ सुनते हैं और परसीव करते हैं, परसेप्शन की तरह आकलन, अवलोकन करते हैं और वो अवलोकन की वजह से अंदर कुछ होता है. वशिष्ठ मुनि पूरा इसका अपोजिट बता रहे हैं कि आपके चित्त में ही, आपके मन में ही आप
आपके मन में विचार आते हैं, उसी किसी विचारों को आप पकड़ के बैठ जाते हो, वही और फिर भावनाओं के जरिए वह भावना दृढ़ हो जाती है, वो विचार दृढ़ हो जाते हैं, और फिर वही अपना शरीर है जिसका काम करना है, कर्म, कर्म स्वरूप ही है, देह है, यह शरीर है, तो वो कर्मों में उसको व्यक्त करने लगता है, और फिर उसको बाहर भी वैसे ही जगत दिखाई देता है। तो यह जो अहंकार की भावना है, यही कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, यही अपने अंदर होता है। तो बोलते जब ये किसी को समझ में आ जाए, जब ये किसी भी जीव को समझ में आ जाए कि मैं सिर्फ यह बॉडी नहीं हूँ, मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, यह मन नहीं हूँ ना, मैं जो जीव हूँ वही एक रूप है, शिव है, वही ब्रह्म है, वही चैतन्य है, ये जिसे समझ में आ जाता है, वही इस पूरे जो योग विशिष्ट ज्ञान है, पूरे शास्त्रों का जो आधार है, यही एक परम रहस्य, यही एक परम सत्य है। यह इतना भी समझ में आ गया तो आपका काम बन गया। इस तरह से वशिष्ठ मुनि यहाँ पे बताते हैं। तो बोलते यह इस प्रकार का जो आत्मबोध यदि किसी को होता है तो उनके साथ क्या होता है, तो बोलते मनुष्य जो होते वैसे ही चिन्ह मात्र होता है, और वो जैसे जैसे अपना उपशम के माध्यम से योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, नॉलेज में रह के उपशम प्रकरण आएगा, उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। इस एन केन प्रकार अलग अलग उपायों के जरिए अपना आत्मबोध प्राप्त करने के मार्ग पे निकल पड़ता है, और अपने आप को जान लेता है। जानने की तो चीज नहीं है, अनुभव कर लेता है, सेल्फ अवेयर हो जाता है। तो बोलते उस वक्त इट इज जस्ट लाइक अ लाइट हाउस, फिर वो आनंद को फैलाना, उस प्रकाश को फैलाना, यही उनका कार्य होता है। बिकॉज वो उनका जो चित्त होता है, वो चित्त जैसे ही शांत हो जाता है, बाहर का जगत भी उनके लिए अपने आप नष्ट हो जाता है। चित्त नष्ट होते ही यह अपने आप नष्ट हो जाता है। तो बोलते जो बाहरी जगत, जो बाकी सामान्य मनुष्य जो अभी तक इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, जो जैसे कुंभार का जो पहिया रहता है वैसे घूमता रहता है, तो उनको भी यह सारा जगत वैसे ही घूमता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो आत्मबोध में होते, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए यह जगत, वो उसका सेंटर, नो व्हील का जो सेंटर होता है, उसकी कुछ मूवमेंट नहीं होती, वो जस्ट अपने अंदर ही शांत स्थित होता है। उनकी भी वैसी ही अवस्था हो जाती है। और फिर वो उसके बाद में उनका भ्रमण जो रहता है, वह एक जस्ट प्रारब्ध के भांति, उनको जस्ट कुछ प्रारब्ध करना है, उसी में वह निरंतर स्थित रहते हैं, और वैसे कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। जो संचित कर्म है उसकी वजह से जो उनका प्रारब्ध है वही करते थे। कुछ उनके हाथों से नए कर्म नहीं होते, कर्म नहीं नए होते मीन्स एक्शंस नहीं होते, ऐसा नहीं है, उसके कुछ इंप्रेशंस नहीं तैयार होते, वो जस्ट ऐसे ही एक्शंस करते हुए दिखाई देते, लेकिन उनके अंदर झांक के देखो तो उसके कोई इंप्रेशंस वो नहीं बनाते, ना अच्छे ना बुरे, दे आर जस्ट एस्टैब्लिश्ड इन द सेंटर, एक अपने ही में स्थित होते हैं। यह यहाँ पे आत्मबोध जब हो जाता है तो वही सुख का साधन है, ये बात समझ में आती है। तब अपना जो फिर मन जो बाहर विषयों के जरिए जो इधर उधर घूमता रहता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इनके जरिए जो अपना जीव है जो दुखी हो जाता है, बोलते ये सारी ही अपने आप शांत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बोलते यह प्राप्त करते समय लेकिन कुछ कुछ अलग अलग अनुभव भी हमें आते हैं। तो यहाँ पे फिर वो अपने मन की जो चित्त की जो स्थिति है, अलग अलग स्थितियां बताएगी, जो हमने कल भी देखा था, उसको डिटेल में फिर से वशिष्ठ मुनि उनको समझाते हैं। बोलते जो जागृति अवस्था होती है वह जब अपने इंद्रियों द्वारा हम लोग बाह्य जगत का विषयों का आकलन अवलोकन करते रहते, तो वो जागृति अवस्था होती है। जैसे अभी हम लोग फिलहाल जागृत अवस्था में है। तो बोलते दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि अहम के भाव के साथ हम लोग एक रूप हो जाते हैं, आंखें तो बंद होती है, लेकिन जो उसके अंदर ही अंदर जो अपने विषय रहते हैं, जो वासनाएं रहती है, उस वासनाओं को पकड़ के ही इस संसार में ऐसा हो रहा है, ऐसा हम लोग इमेजिन करने लगते हैं मन ही मन में। तो वो बोलते हैं स्वप्नावस्था, ड्रीम अवस्था।
देन उसके बाद में बोलते हैं देर इज और एक अवस्था अपनी हो जाती है कि जहाँ पे हम लोग सोते हैं, निद्रा अवस्था तो होती है लेकिन इट्स ए ड्रीमलेस। ड्रीमलेस माने उसमें कोई भी स्वप्न नहीं रहता है। आप जस्ट अपने साथ हो एंड यू आर जस्ट डीप स्लीप, इन अ डीप रेस्ट। वो जो अवस्था होती है उसको सुषुप्ति अवस्था कहा गया है, वो होती है। देन उसके बाद में बोलते हैं कि जब आप ध्यान, प्राणायाम, ध्यान वगैरह करते हो और इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन आ जाता है, ना जागरूकता फुल्ली, ना स्वप्न, ना सुषुप्ति, इन तीनों का कॉम्बिनेशन समवेयर इन बिटवीन, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तो जस्ट आप बस होते हो नो, हृदय में आप लीन हो जाते हो और वहीं पे स्थित हो जाते हो, वही अवस्था को तुरीय अवस्था बोला गया। एंड देन इसके बाद की जो अवस्था होती है तुरीयातीत, माने तुरीयातीत के तुरीय अवस्था के भी परे, जस्ट शुद्ध चैतन्य, जस्ट शुद्ध परमात्मा, यू आर बिकमिंग वन, आप उनके साथ तद्रूप हो जाते हो, एक रूप हो जाते हो, उसी अवस्था को तुरीयातीत अवस्था कहा गया। तो अपने जीवन का उद्देश्य वही है कि प्राणायाम ध्यान के जरिए तुरीय अवस्था का अनुभव करो, ध्यान मेडिटेशन करो, एंड जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था हमें लग जाती है, तुरीयातीत हम हो जाते हैं, अपने आप में भी आनंद में हम लोग खो जाते हैं, अपने आप का अनुभव करते हैं, बस जस्ट होते हैं। नो, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई एम नथिंग, आई वांट नथिंग। इस प्रक्रिया के द्वारा जब हम लोग अंदर स्थित हो जाते हैं तो फिर तुरीयातीत अवस्था का हम लोग अनुभव करते हैं। सो बोलते फिर ये सब कुछ करने में क्या दिखाई देता है, क्या समझ में आता है? तो बोलते जैसे कोई आप कोई भूमि में गड्ढा खोद दो तो क्या होगा, गड्ढा जैसे खोदोगे तो एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा, और ज्यादा बड़ा गड्ढा खोदोगे और बड़ा एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा। तो यही अपनी भी अवस्था हो जाती है, जैसे जैसे जो जितना जितना ज्यादा इसके बारे में जानते जाते हैं वैसे वैसे ही पता लगता है कि कितना कुछ नहीं जानते, कितना कुछ हमें पता ही नहीं है, यह तो जस्ट स्पोक भी है, जस्ट एम्प्टीनेस, इसका हमें अनुभव होने लगता है। तो बोलते जिस प्रकार जो वृक्ष रहता है उसका जैसे बीज अंकुर, देन उसके पान बनते हैं, उसके फूल बनते हैं और फल बनते हैं, उसी तरह से भी इस सृष्टि में जो चिन्मात्र ब्रह्म है उसी से फिर वो विषय आ जाते हैं, चैत्य आ जाते हैं, उसी से फिर चित्त होता है और क्रमा क्रमा से मन बन जाता है। वो इस तरह से ही है। तो बोलते ये जो बीज और जो वृक्ष है उसका दृष्टांत का सुनाते हैं कहानी। तो फिर राम यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि देखो आपने मुझे बताया कि जो जो बीज होता है उसका जो वृक्ष होता है और उसके अंदर का जो ज्ञान होता है, ये हमें पता रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? वो वृक्ष जो है वो अपने आप तो बीज, वृक्ष तो बनने ही वाला है, अपने आप अंकुरित होगा, अपने आप उसके फल फूल लगेंगे, पान लगेंगे, अपने आप सब होते रहेगा। मेरे जानने से उसके बारे में या ना जानने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस प्रक्रिया को। और वैसे ही ये मैं आत्मज्ञान, यह जो सृष्टि के आपने उत्पत्ति के जो ये कारण बताए, यह मैंने आत्मज्ञान जान भी लिया तो भी क्या ये सृष्टि उत्पत्ति होना बंद हो जाएगी? क्या यह सृष्टि लय होना बंद हो जाएगी? तो मैं जान के भी करूं क्या? तो ये तो तत्वज्ञान निष्फल हो गया है। इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी भी बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रेज करते रहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि बताते हैं देखो बेटा, हे रामा, यह जो बीज और यह जो वृक्ष है, यह इसका जो ज्ञान है वह नियति के आधार पर द्वैत में, द्वैत की तरफ जिसमें भेद है उस ज्ञान पर यह आधारित है। जबकि जो आत्मज्ञान है वह आधारित है नॉन ड्युअलिटी, अद्वैता फिलॉसफी पे आधारित है। वही चैतन्य रूप आत्मा में उसके बारे में एक रूप हो जाना, वो जानने की चीज नहीं है। यहाँ पे तुमने तो बोला बीज और वृक्ष के ज्ञान को प्राप्त कर दिया, यहाँ पे तो जानने की चीज नहीं है, जान सकते भी नहीं हो तुम उसको। जितना ज्यादा जानोगे उतना लगेगा कि मैं इनको कुछ जानता ही नहीं। तो यह अनुभव की बात है, तो यह अद्वैता फिलॉसफी की बात है। यह चैतन्य अनंत जो है उस स्वरूप को एक्सपीरियंस करने की बात है, अनुभव की बात है, जानने की बात नहीं। इसीलिए यह दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक नॉन ड्युअलिटी के ऊपर भेद पे व्यक्त होता है, ज्ञान के रूप में व्यक्त होता है, और एक जो होता है पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। दोनों चीजें काफी अलग अलग है, तो इसके आप कंपैरिजन ना करें। और जब इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है
इसकी अनुभूति प्राप्त हो जाती है, अपने आप बाहरी जग और जगत के जो सुख दुख है वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये आत्मज्ञान निष्फल कैसे हो सकता है। इस तरह से वशिष्ठ मुनि उनके सामने प्रति क्वेश्चन रखते हैं। तो बोलते हैं कि किस तरह से जो होता है, इस तरह से जिनको आत्मबोध हो जाता है, तो वही बोलते हैं जब उनका चित्त जो होता है वो शांत हो जाता है ना, बोलते ही है ना, अमन बोलते हैं। अमन माने क्या, मन जहाँ पे नहीं है, माने नहीं, मन मीन्स मन, अमन मीन्स, अमन का मीनिंग ये बताएगा ना, शांति। तो जहाँ पे अमन, नो माइंड, वह स्थिति आ जाती है, वहां पे जब समाधि अवस्था में हम लोग लीन हो जाते हैं, उसी अवस्था को जीवन मुक्त यहाँ पे कहा गया है। इस तरह से वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को समझाते हैं। तो बोलते यह जो प्रवाह होता है, जो चिंतन रूप प्रवाह होता है, यह सब चित्त की वजह से ही होता है। और जो लोग इस चित्त को, जो बोलते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी उसको फिर से प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि यह जो समाधि की अवस्था बोली आपने, ज्ञान योग जो बोला, इसकी वजह से ये जो चित्त के व्यवहार तो शांत हो जाते हैं, उनकी हालचाल जो मूवमेंट्स है वो तो चित्त का शांत हो जाता है। यह कैसे कह सकते हैं हम लोग कि शांत हो जाता है, दिखता तो नहीं है, ऐसा होता तो नहीं है। नो, तो फिर से वही वशिष्ठ मुनि उनको फिर से वही क्रोनोलॉजिकल आर्डर समझाते हैं कि किस तरह से यह पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है और किस तरह से वह चित्त वहां पे प्रकट हो जाता है, किस तरह से विषयों की स्फुरण से ही यह चैतन्य चित्त बन जाता है, उसको संज्ञा प्राप्त होती थी। लेकिन जैसे ही यह चित्त चिद्रूप हो जाता है, ऐसे ऑटोमेटिकली वहां पे कुछ विषयों की स्फुरण ही नहीं रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। वो जैसे ही सर्प जो दिखता है डोरी के ऊपर, डोरी ही सर्प के रूप में भासमान होती है, और जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे ही उसके बारे में समझ लेते कि यह सर्प नहीं है, तो सर्प अपने आप नष्ट हो जाता है। उसी तरह से यह सब चीजें जो दिखाई देती है कि स्वरूप में है, वह अपने आप, वो जगत भी, उसकी हालचाल भी अपने आप ही नष्ट हो जाती है, और वैसे भी वो इमेजिन में होता है। देन प्रभु रामचंद्र जी फिर से प्रश्न पूछते हैं कि यदि ये सब नष्ट हो गया तो फिर मैं जीऊंगा कैसे, हाउ विल आई एक्चुअली, कैसे मैं जीऊंगा इस जीवन को। तो बोलते हैं यह आपके जो मन में फियर है, यह जो भीति आप व्यक्त कर रहे हो, यह व्यर्थ है। बिकॉज जब यह ऐसा हो जाता है तो उसके बाद में जो व्यक्ति आत्मबोध होता है, उनका व्यवहार यहाँ पे इस जगत में सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध माने जो संचित कर्म रहते हैं उनके अनुसार सिर्फ चलते रहता है, उनके कोई नए कर्म नहीं बनते। वो एक्शंस तो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कोई भी कर्म नहीं बनते, नए कर्म। इसलिए वह जस्ट दिखाई देते हैं, सब कुछ चलते रहता है वैसे ही, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से शांत हो चुके होते हैं। तो बोलते यह जो ब्रह्म ज्ञान है इतना सहज है, इतने आसानी से समझ में आ सकता है, तो फिर प्रयत्न क्यों करने पड़ते, इतने सब झंझट करने की क्या जरूरत है। पलक झपकते ही यह ज्ञान अगर मिल सकता है, तो इतना सारा अवडंबर, इतना सारा ये क्यों करना पड़ता है। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी प्रश्न पूछते हैं। तो वशिष्ठ मुनि उनको बताते हैं कि देखो बेटा, ये जो है, ये सारा जो चीज है, हे रामा, बहुत सारे जो अपने संचित कर्म है उसकी वजह से बहुत दृढ़ संस्कार अपने ऊपर बन चुके होते हैं। यह सब कुछ द्वैत है, इस तरह से अपने मन में यह बहुत दृढ़ भावना निश्चय हो सकती है, और उससे हमें परे जाने के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। प्रयत्न हमें करते रहने पड़ते हैं, बार 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 इस आत्मज्ञान को जीने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए। इस तरह से वशिष्ठ मुनि यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी को समझाते हैं। और फिर इसको और समझाने के लिए और ये चैप्टर नंबर 24 यहाँ पे खत्म हो जाता है। और फिर जो नया चैप्टर जो है नेक्स्ट, उसमें हम लोग कर्कटी राक्षसी की एक सुंदर कथा है वहाँ पे पूरी, उसको हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। तो इसी के साथ आज का यह सत्र मेरे पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे अपनी वाणी को शांत कर लेता हूँ। आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपके मन में इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर प्रश्न पूछ लीजिए। यदि आपको व्यक्त होना है तो आप व्यक्त भी इसके बारे में हो सकते हो। जय गुरुदेव।
अनम्यूट का ऑप्शन आपके लिए खोल दिया है। ये आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो देन आई कैन टेल यू ऑल अ स्टोरी, कैन बी अ स्टोरी टाइम। क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड ना। हाँ, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ये नहीं तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। किसी के मन में कुछ प्रश्न है? इट्स अ गुड आइडिया टू आस्क क्वेश्चन, है ना। वशिष्ठ मुनि जब बताते हैं तो बोलते हैं जब भी हम लोग ये ज्ञान सुनते हैं तो इसमें द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस क्या बताया गया है? वाचन बताया गया है, उसके बाद में श्रवण बताया गया है, श्रवण के बाद में मनन चिंतन जो हम लोग अभी चर्चा करके यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद में निधिध्यासा आता है। लेकिन निधिध्यासा के पहले जो मनन चिंतन जब होता है तो मनन चिंतन में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वह अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है या उसको थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत है। बिकॉज अदरवाइज ये करेंगे नहीं तो जो समझ में आए उसी को प्रैक्टिस कर लेंगे, उसी का निधिध्यास हो जाएगा, एंड देन प्रोबेबली विल बी प्रैक्टिसिंग समथिंग रॉन्ग। So it's a good idea that when we have people like Sangeeta ji, Sachin ji here with us, it's a good idea to put your question. आपका प्रश्न पूछे और अपने मन में जो संकल्पना है, जो भी अपनी समझ है, उसको क्लियर कर ले। इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, इसलिए बहुत बताया ही गया है कि आप इसको फॉलो करो प्रॉपरली। आपका वाचन भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में श्रवण जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद में मनन चिंतन वो भी हम लोग करते हैं, और उसके बाद में जब ये ठीक से एस्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर इसको अपनी जीवन में उतारना, माने आचरण में लाना, वो निधिध्यास की स्वरूप है। तो ये करना जरूरी है। दीपाली जी कुछ कहना चाहती है? हाँ सर, मैं ना ये अभी सुनती हूँ ना, ध्यान से सुनती हूँ, लेकिन मी जेव्हा जेव्हा ते ऐकते, अगदी श्रवण करते, पण नेमकं माझं लक्ष ना काही वेळेला कुठेतरी डायल्यूट होतं, म्हणजे कुठेतरी सरकतं. ते असं का होतं सर? म्हणजे मी दुसऱ्याच विचारामध्ये जाते, मुंगेरी लालसारखी काहीतरी. म्हणजे ज्या वेळेला ते सांगतात ना की वशिष्ठ गुरुजींनी रामाला असं असं सांगितलं, मी ते ध्यान देऊन ऐकते, पण ते सांगितलेलं मग काढलं ते त्या दुसऱ्या विचारामध्ये माझं मन असं भरकटत जातं. तर त्यावेळेला असं स्थिर राहावं असं मला वाटतं. बर, तर असं का होतं ते? हाँ, अपन बघूया। दीपाली जी का प्रश्न है सबके अपने ऑडियंस के लिए, बेनिफिट के लिए मैं उसको हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। वह बोलती है जब मैं सुनती हूँ तो मैं बड़ा ध्यान दे के सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, मन भटक जाता है, ऐसा इधर उधर कहीं पे तो चला जाता है, और फिर जो चल रहा होता है उससे मन हट जाता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यह प्रश्न है दीपाली जी का। तो दीपाली जी का यह सिर्फ योग में होता है ऐसा नहीं है। आप टीवी देखते हो, टीवी देखते देखते कुछ मन में थॉट आ जाता है, आप अलग ही वर्ल्ड में चले जाते हो। तो इसको बोलते हैं जो स्वप्न अवस्था बोलते हैं ना, इस अवस्था को यहाँ पे स्वप्न अवस्था कहा गया है। स्वप्न अवस्था माने सिर्फ नींद में होती है ऐसा नहीं है, आप दिन में भी उसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं। नो, डे ड्रीमिंग माने क्या, आप बैठे होते हो, दिखते तो हो जागरूक, चलते रहता है, लेकिन आप अंदर से देखे देखो तो आपका मन कहीं पे और भटक गया है। यह बहुत बार होता है। अपने हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कुछ देखते रहते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, एंड अपने आप ही मन चला जाता है। सो ऐसा क्यों होता है, यह प्रश्न है। और इसके लिए ऐसा होता है तो क्या करें? बेसिकली होता क्या है कि जो अपना मन है ना, वह विषयों में फंसा रहता है। उसका काम क्या रहता है? मन का काम, पहले बात तो उसका स्वभाव कैसा होता है? चंचल होता है, एक जगह पे रुकने की उसकी मनीषा होती नहीं है। वो जो मंकी माइंड कहते हैं उसको, जो माकड़ के भांति रहता है, उसका क्या, मंकी को कभी देखा है कैसा आराम से शांत बैठा है? नहीं, कुछ तो कुछ करता रहेगा, इधर खुजाएगा उधर करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, या कुछ खाते रहेगा, नहीं भी कुछ खाना है तो कुछ तोड़ेगा, ये करेगा, कुछ नहीं कर रहा तो एक डाली से ऊपर दूसरी डाली के ऊपर भागता रहेगा। अपने मन का भी स्वभाव ऐसे ही है। यह क्या करता है, एक डाली से ऊपर दूसरी डाली के ऊपर, उससे ऊपर उससे ऐसे भागते रहता है। इसका मन का स्वभाव ऐसा ही है, ऐसे चंचल है, इसकी वजह से यह अवस्था हमें जीवन में प्राप्त होती है। सॉल्यूशन क्या है? तो जो सॉल्यूशन है वो अपनी सांस में है, जो अपना ब्रेथ है।
तो जो अपना ब्रेथ है या ब्रेथ अपने साथ कंटिन्यूअसली रहता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका जो मन है इधर उधर भागे, तो जस्ट टू ब्रिंग इट बैक टू द थिंग, आप कंटिन्यूअसली आप फोकस करो अपने ब्रेथ के ऊपर। जब आप ब्रेथ के ऊपर फोकस करोगे तो यह मन जो है, चंचल मन जो है, यह इधर उधर नहीं भागे। ये एक प्रक्रिया है, यह अभ्यास से होता है। इसलिए हम लोग, आपने जरूर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया होगा, लेकिन प्राणायाम, ध्यान, ये जो प्रैक्टिस जो सतत हम लोग अभ्यास करते हैं, इससे यह प्राप्त हो जाता है। यह एक चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन इधर उधर भागता है ना, कल से मेरे को बोल देना, आपका वीडियो चालू करके ना मैं मेरे साइड में आपको स्पॉटलाइट पे डाल दूंगा। मैं सुबह यही करता हूँ। मैं सुबह जो यतीम कंडक्ट करते हैं सेशन में, उनके साइड में बैठ के मेरा वीडियो चालू रहता है ना। मैं पेशाब के लिए जा सकता हूँ ना, मेरे को पानी पीने कुछ नहीं। मैं जो 1-1.5 घंटा बोलते मैं ऐसे बैठे रहता हूँ उनके सामने। मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं कुछ एक्शन नहीं कर सकता, मैं ना इधर देख, कुछ नहीं कर सकता। मेरा फुल अटेंशन इज जस्ट देयर। हो सकता है कि मन के अंदर थोड़े बहुत विचार आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्हेन यू आर ऑन द कैमरा, अक्सर आपका मन इधर उधर नहीं भटकता है, अक्सर आपका मन डेविड नहीं होता। कैमरा चालू नहीं है तो सुन लिया, कभी 2 मिनट सुन लिया, कभी ये सुन लिया, इस तरह से मन है अपना, ऐसा हो जाता है। सो इट्स अ गुड आइडिया। जिस तरह से मूवी में जाते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं, सामने मूवी चलती रहती है एंड यू आर देयर, उस तरह से आप करो, अपना वीडियो कैमरा चालू रखो, बैठ जाओ इधर, तो कम हो जाएगा। देन प्रैक्टिस करो अपना जो डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, दैट विल हेल्प यू। ठीक है। हाँ, अनम्यूट कर ले अपने आप। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। प्रियंका जी बोलिए। मेरा इसी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जब हम ज्ञान सुनते हैं तब हमारा मन इधर उधर क्यों विचलित होता है? जब हम मूवी देखते हैं थिएटर में, तब तो हमें ना नींद आती है, ना ही हमारा मन इधर उधर जाता है। मैंने देखा है गुरुदेव जी के साथ जितना भी ऑनलाइन क्लास होगी, जब वो कुछ बोल रहे होगे, ज्ञान की बात कर रहे होगे, चाहे आमने सामने हो चाहे उसमें हो, मुझे बहुत नींद आती है, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहाँ गई। और फिर अरे गुरुदेव जी है, उस पल के लिए हम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, पर जब वो ज्ञान देना शुरू करते हैं तो कहीं चले जाते हैं। बट मूवी थिएटर में तो हम कहीं नहीं जाते। ऐसे ही आप जब बोल रहे हो तो समझ में सब आ रहा है, तो हम इससे विमुख क्यों होते हैं? क्षण भर के लिए भी क्यों पुनः पुनः करना होता है? क्यों हम उसमें ही लीन क्यों नहीं रहते इस ज्ञान में? प्रश्न वही है, एग्जैक्टली सिमिलर प्रश्न है जो दीपाली जी का है, और उसका आंसर मैं फिर से दोहराऊंगा, तो फिर से आई विल रिपीट द सेम थिंग अगेन। यही हो जाता है अपने मन के साथ। अपना मन बहुत चंचल होता है, इधर उधर भागता है। लेकिन ये भी प्रश्न सही है कि फिर वो मन जो चंचल है, जब मूवी जब देखते तब क्यों नहीं भागता? फिर तब तो नहीं भागता। यहाँ पे गुरुदेव के सामने बैठ जाते हैं, गुरुदेव कुछ नॉलेज देते हैं, अष्टावक्र गीता सुनाते हैं, और अपने को तो झपकी लगती है। क्यों होता है ऐसा? हाँ, ये सब बातें होती है। क्यों होती है ये सब बातें? बिकॉज अपने को अभी आदत नहीं लगी है इन सब बातों की। वी आर नॉट यूज्ड टू इट। जिस चीज की हम लोग वो बाहरी अट्रैक्शन इतना ज्यादा हमें अच्छा लगता है, उसको जितना हम लोग इतना ज्यादा सच मानते हैं जो मूवी में लगता है। मैं तो बताता हूँ, एक नेक्स्ट स्टेप भी चले जाते हैं। जब वो हीरोइन सामने आती है ना, वो श्रीदेवी, माधुरी, या जो भी आपकी फेवरेट हीरोइन है, ऐश्वर्या राय, you go one step ahead, you start imagining yourself in that पर्दे पे। now Priyanka is doing dancing with the hero, जो भी आपको हीरो अच्छा लगता है। so उधर तक नहीं रुकता है, सिर्फ उसमें इतना एक रूप हो जाता है, उसमें इतना घुस जाता है मूवी के अंदर, कैरेक्टर के अंदर। you start imagining yourself as that character itself। ये होता है, तो उसमें रममाण हो जाते हैं ना चीज में, तो फिर वो मन इधर उधर भागता नहीं, उसी में हम एक रूप हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोसेस में, आपका वो रममाण हो नहीं रहा है अभी, आपका पूरा चीजें वहां पे नहीं, बिकॉज आपको कुछ तो और है, बिकॉज ऑफ द पास्ट संचित कर्मास जो भी है, कुछ भी है, जिसकी वजह से अभी भी हम लोग चीजों को इतना बाहर जगत को इतना सत्य मानते हैं, इतना दृढ़ उसमें फंसे रहते हैं कि अपना जो पंचेंद्रियों से जो विषय जो होते हैं, द सेंस ऑफ टेस्ट, द सेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स आर देयर ना, वो हमें भगाते रहते हैं इधर उधर।
तो ये अभ्यास से हो जाएगा। एक चीज है, ये तो ज्ञान सुनते हुए मेरे पास बैठे हो, ये सुन रहे हो, ऐसा होता है तो समझ में आती है। गुरुदेव के साथ ऐसा होता है, दैट इज एन डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब वो स्पेस एलिमेंट में हम लोग चले जाते हैं ना, उनके सानिध्य में होते हैं, तो यू एक्चुअली गेट डायरेक्ट नॉलेज। तो पराशक्ति से आता है, उसको इस अनुभव के साथ कंपेयर करके कंफ्यूज नहीं होना। वो जो मिलता है, वो जो मिलना होता है, शब्दों से नहीं मिलता है। वहां पे यू आर इन अ टोटल डिफरेंट स्पेस। आपको ध्यान लगना होता है, ध्यान लग जाता है। आपको उस वक्त नींद की आवश्यकता है तो नींद मिल जाती है। आपको शांति की आवश्यकता है तो शांति मिल जाती है। प्रेम की आवश्यकता है तो प्रेम मिल जाता है। गुरु का वह जो औरा है, वहां पे जो होता है वो अलग चीज है, एंड दैट इज ओके। डू नॉट क्वेश्चन दैट। उसके ऊपर प्रश्न ना उठाए। जो होता है उनके सानिध्य में वही आवश्यक है, इसलिए हो जाता है। यह श्रद्धा रख के उसको स्वीकार कर ले। उसके ऊपर प्रश्न ना उठाए। पर ऐसा लगता है हमने मिस कर दिया गुरु ज्ञान उस टाइम पे। बहुत बढ़िया, ये होता है। तो क्या लगता क्या है पता है क्या? हम लोग समझते हैं ज्ञान जो है ना वो शब्दों में है। दैट इज व्हाट वी फील। आवर फीलिंग क्या होती है? ज्ञान इज इन द वर्ड ना। ज्ञान शब्दों में नहीं है, दो शब्दों के बीच में सही ज्ञान है। बिकॉज मैं अभी बोलूं, अभी मैंने ये कल या परसों भी यही बात बोली थी। यदि मैं आपको कहूं कि मैं जो मेरे मुख से निकल रहे शब्द है ये सारे असत्य है, तो क्या आप मानोगे उसको? बट ये सच है। बिकॉज जो सच है उसको मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। शब्द से, मुख से, वाणी से निकल गया माने ही असत्य है। यही सच है, यही है। तो यही है कि सत्य तक पहुंचने के लिए असत्य का ही सहारा लेना पड़ता है। मौन को समझाने के लिए एडवांस कोर्स में शब्दों का ही सहारा लेना। ये बड़ा विचित्र है, बट यही सत्य है। ये विचित्र ही सत्य है। इस जगत का ये जो विचित्र स्वभाव है ना, यही सत्य है। कोई भी चीज को मैं आज एक एंगल से प्रूव कर दूंगा, दूसरे ही क्षण में उसी दूसरे एंगल से उसको प्रूव कर दूंगा। और आप प्रूव हो भी जाएगा, आपको लगेगा ये भी बंदे ने सही बोला, ये भी बंदे ने सही बोला, और दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट रहेंगे। ये ऐसा होता है, तभी वह सत्य है। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज वेरी डेलिकेट। मैं एक जस्ट थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, एक डिफरेंट एस्पेक्ट। हाँ बोलिए। अभी ये जो दीपाली मैडम और इन्होंने जो बोला है, ये बहुत ही कॉमन ट्रेट है। मतलब ये सभी में ऐसा ही होता है, अपना माइंड का नेचर ही ऐसा है। और ये अभी हम एक देख सकते हैं कि देखो अपना, आप एग्जाम्पल जो दिया कि फिल्म देखते वक्त या कुछ इंटरेस्टिंग देखते वक्त हम क्यों मतलब वहां पे अपना क्यों अटेंशन डाइवर्ट नहीं होता है। लेकिन हम जब ज्ञान की बातें सुनते हैं, जब या कुछ ऐसा बड़ा कुछ स्क्रिप्चर वगैरह ये लेते हैं, तब नेचुरली ऐसा क्यों होता है माइंड को? तो बेसिकली ऐसा है कि ऐसे बोलते हैं कि जो जब माइंड को लगता है कि अपना नाश होने वाला ऐसा कुछ ज्ञान पढ़ने जा रहा है, तो नेचुरली वो उसमें डिस्टरबेंस लेके आता है। तो उसमें वो कंसंट्रेशन वगैरह नहीं वहां पे लेके आता। दूसरा ऐसा कि माइंड का ये जो एबिलिटी है कि कौन से इसके एक पर्टिकुलर मतलब फिल्म में अगर अपना माइंड मतलब ज्यादा कंसंट्रेट होता है, ज्यादा एंजॉयमेंट होता है उसमें, तो ये माइंड के एबिलिटी को ही ये हम लोग अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर सपोज आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, या कोई स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है, या किसी को मिलने अच्छा लगता है, तो जो वो मूवी है उसको ही आप परब्रह्मन या उसमें कुछ डिवाइन एलिमेंट देखें। और जो पर्सन आपको ज्यादा अच्छा लगता है उसमें ही आप परमात्मन या परब्रह्मन को देखें। तो अगर वो आप ऐसे करोगे तो माइंड का शक्ति उस अपने फायदे के लिए हम यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग माइंड, यूज द एबिलिटी ऑफ माइंड टू टू गेट ओवरकम टू द माइंड। तो ऐसे ही हम उसका एबिलिटी का ही फायदा लेके उसको हरा सकते हैं।
अभी मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ये गोंदवलेकर महाराज की इसमें चरित्र में आती है। उसमें क्या हुआ कि एक भक्त उनके पास आता है और वो बोलता है कि महाराज, आप सब लोगों को बोलते हैं कि वो राम नाम ले लो, ये ले लो, नाम स्मरण करो वगैरह, वो सब ठीक है, लेकिन मैं अभी बहुत ऑनेस्टली और प्रामाणिक से बताता हूँ कि मेरे को देखो, ये गांजे का व्यसन है। मुझे हर रोज गांजा चाहिए, नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो महाराज तो बहुत ये थे, वो बोले अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो मैं तुम्हें एवरीडे गांजा दूंगा, जो जितना 1 तोला 2 तोला जो इतना है वो, लेकिन तुम्हें एक करना पड़ेगा, इतना 1-2 जब अगर तुम ये करते हो कुछ 100 या इसका जब, तो मैं तुम्हें वो गांजा दे दूंगा। तो उसका जो माइंड था वो तो पहले आया था वो गांजा के लिए, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन गांजा पे ही था। उसको ये साइड बाय एक मिल रहा है तो वो इसको लालच दे दी कि तू भाई 1-2 माला ये जप कर ले, फिर इसको ये मिलेगा। तो धीरे धीरे उसने वो माला जपना चालू किया और उसको गांजे मिलते गए। ऐसा कुछ दिनों बाद उसका वो गांजे में से इंटरेस्ट कम होते गए। धीरे धीरे उसको पता चला कि यार इसमें इतना मजा आ रहा है, अभी ये गांजे का मजा मुझे कुछ ज्यादा अपील नहीं कर रहा है, ज्यादा ये नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने मन का कोई एक वस्तु पे ज्यादा मन आता है, उसी का ही उपयोग करके उसको परमार्थ के ओर लगा दिया। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे अपना माइंड ज्यादा अटैच होता है, वो कौन सी चीजें है वो आइडेंटिफाई करो और वही चीजों को अपने पारमार्थिक उन्नति के लिए यूज करो। तो ऐसा करके हम अपना ये सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करके हम अपना या गोल साध्य कर सकते हैं। थैंक Very nice. No, so also see the एक और चीज अटैच कर सकते, वर्षा ताई भी कुछ बोलना चाहती है। एक चीज, हाँ बोल। ह्या संदर्भातच मला बोलायचं आहे दीपालीच्या प्रश्नाविषयी। तर याच्यात आम्हाला म्हणजे मी मागचे वर्षभर तरी ब्रह्मचैतन्यजींचं सेशन्स अटेंड करत होती, तर त्यांनी आम्हाला एक शिस्त लावली की कॅमेरा कधी बंद नाही करायचा, आणि म्हणजे नॉलेज सेशन हे अतिशय पवित्र आणि खूप याचं असतं, तर त्यामुळे तुम्ही शुचिर्भूत होऊन म्हणजे घरात तुम्ही दिवा लावा, त्याच्या आधी तुम्ही शक्य झाले तर आंघोळ करा किंवा निदान स्वतरी कपडे घाला, बाहेरून आलेले कपडे घालून किंवा असं, कारण काय प्रत्येक स्थलकालाचा महिमा वेगळा असतो, आपल्या भोवतीची चांगली शक्ती असते तशीच वाईट शक्ती ही असते आणि ती आपल्याला चांगल्या बाजूला करत असते। तर ह्यासाठी ह्या 2-3 गोष्टी जरी आपण आत्मसात केल्या की कॅमेरा ऑन करायचा, कपडे स्वच्छ धुवून म्हणजे निदान धुतलेले घालायचे, निदान नॉलेज सेशन ऐकायच्या हात आणि पाय तरी धुवायचे, तर ह्या गोष्टींनी सुद्धा खूप फरक पडू शकतो आणि मला तसंच खूप फरक पडले। मी ते म्हणजे त्यामुळे माझाही कॅमेरा कायम ऑन होतो आणि आपण त्या ह्यानीच बसायचं। तरी सुद्धा मला कधी कधी होतं, म्हणजे मध्ये आता तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर मध्ये काही दिवस माझे सेशन्स अटेंड होत नाहीत, तर मला एक असं विचित्रच व्हायचं 6:30 नंतर, आणि मग एकदम सर्दी, डोकं किंचितचा ताप वगैरे आल्यासारखं पण वाटायचं वगैरे, आणि माझं ते सेशन कंटिन्यू व्हायचं नाही, बुडायचं। म्हणजे आता सुद्धा मध्ये एका दिवसाआड असं थोडं होत गेलं, पण हे त्यांनी सांगितलेलं असल्यामुळे ते नॉलेज मला होतं। तर मग मी असं केलं की 5:30ला मी थोडी बाहेर फिरायला जाते आणि मग येते घरात आणि मग हे सेशन अटेंड करते। तर आपण असं काहीतरी करायलाच हवं, कारण शेवटी चांगली शक्तीला आपल्याला जास्ती सामोरं जायचंय आणि त्याच्यासाठी जे काय करायचंय या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत पण खूप महत्वाच्या आहेत, असं मला वाटतं। खूब सुंदर वर्षा ताई, एग्जैक्टली मैं वही कहने वाला था। वर्षा ताई ने बता दिया, देखो कितना कॉन्शियसनेस कितना एक हो जाता है यहाँ पे ना। थोड़ा हिंदी में रिपीट कर देता हूँ जो वर्षा ताई ने बोला। बेसिकली क्या है ना कि आर यू वैल्यूइंग दिस, डू यू हैव दैट रेफरेंस टुवर्ड्स दिस नॉलेज, नो। सो हाउ टू at least showcase that reverence
how to showcase that gratitude, how to showcase that this is something very, very valuable to me. So she is saying that as you have to sit here for a longer time, you first go for a walk, get yourself exhausted. That rajas, because see, when does mind become active? Mind becomes active when your kriya shakti is not consumed. Kriya shakti is not consumed, your mind will become active. No? So you finish your rajas first. Rajas माने रजोगुण जो होता है, वो घूमने से बोल रहे हैं कि आपके घूमने से वो रजोगुण क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा. वो then your mind will not be that active. अपने आप that mind will become calm down. Right before this, right before sitting for Yoga Shishta, you come here and do the Guru Puja with us. No, you do the Atharva Shirsha Patan with us. Then you do the Bhagavad Gita with us. In this entire, and then there is a meditation also in Gurudev's. If you do all these things, automatically your mind is ready, prepared for to receive the knowledge. And then in addition to that, you have that faith, you have that respect, you have that reverence towards this knowledge, and then keep your camera on. अच्छे से बात लेके आओ, अच्छे से बैठ जाओ, थोड़ा सा दिया वगैरह लगा लो, थोड़ा सा धूप वगैरह लगा दो, मस्त सुगंधित वातावरण में आके बैठो. देन ये जो बाकी के जो साइड इफेक्ट्स है ना, वो कम हो जाएंगे. बट डेफिनेटली जो वॉक वाला बात है ना, दैट इज वेरी वेरी गुड. एंड जो प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. यू एक्सपीरियंस दिस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस आफ्टर 2-3 days. ये आचरण की बात है, सुनने की नहीं. आप इसको करके देखो और फिर अपना अनुभव 2-3 दिन बाद बताना कि हाँ, मैंने ये प्रश्न पूछा था, मुझे ये आंसर मिला, 3-4 लोगों से मैंने अपने जीवन में उसको उतारा, एंड दिस इज द रिजल्ट. कैन वी ऑल डू दैट? दीपाली जी, प्रियंका जी, आपके प्रश्न बहुत सही है, बिल्कुल गलत न समझना. मन में ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने क्या प्रश्न पूछ लिया. नहीं नहीं, दिस इज वेरी कॉमन, दिस हैज हैपेंड टू ऑल ऑफ अस. हमारे सबके साथ ये हुआ है. और अपने अनुभव से वर्षा ताई ने आपको ये अनुभव होता है कि मेरे साथ भी होता था, मैंने ये एक चीज किया, मेरे को हेल्प हुआ. तो अनुभव से सीख ले उनके. ओके, चलिए, किसी के मन में और प्रश्न है तो पूछ ले. देखो ये इम्पोर्टेंस है जो निधिध्यासा करना है, उसके पहले मनन और चिंतन करने का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चूकना मत, नो, इसके लिए चूकना मत. जरूर अपना क्लियर कर लेना जो भी मन में प्रश्न है. शांत होके जाना. ऐसे सोते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे कुछ रहेगा. At the time of sleeping, yes, everything is there with me. उस भाव से निकलना इधर से. गुड. किसी के मन में कुछ प्रश्न है? नहीं तो फिर हम लोग संगीता जी से कहानी सुनेंगे. फिर अभी पूछ सकते हैं ना दीपाली जी से कि हाउ शी इज फीलिंग विद इन 5 minutes. द रिजल्ट विल बी हियर ओनली. आई सॉ हर, शी इज सो अटेंटिव. व्हेरी एक गुड. भी शब्द मिस नहीं किया है उसने. Because her focus is on you. Very good. Isn't it? See, that is the way it is. So छान mind वाटतंय. also, you know, actually mind is nothing. From here, if you see, no, mind is nothing. We have to just focus on it and it goes away. I'll tell you a story, you know. ये दूसरी है, मैं दूसरी सोच के आई थी ना. Just see how it comes out. एक दिन there was a cap seller. Okay, cap seller था. तो टोपियां बेचता था, चलता रहता था ऐसे ऐसे. बहुत सारी टोपियां वो मार्केट से लेके आया. अभी जा रहा था अपने गांव में, सो बीच में फॉरेस्ट, जंगल आता है. ठीक है, he was going through, he was wearing the cap and all, and he was just dancing, going अपना मजे से जाता है. तो monkeys were there, बंदर. Okay, so you know how the monkeys are, they are copycats. Exactly, right? जो करते हैं वो कॉपी करते हैं. तो उसने क्या किया, अपनी टोपी से ऐसे वो ऐसे मस्ती करके ऐसे करा. तो सब बंदरों ने क्या किया, उसके ऊपर आके जंप किया और सब उसके कैप्स लेके गया. दिस इज अ स्टोरी वी हैव हर्ड, यू नो, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड आल्सो, एंड वी हैव बीन टेलिंग आवर चिल्ड्रन आल्सो. नाउ व्हाट हैपेंस, लेके जाके सब एक कैप पहन के बैठ गए. अभी इसको कैप, अभी ये कहाँ से लेके आएगा, ये जा रहा है ऐसे पकड़ने को, तो बंदर ऊपर से गिर रहे हैं उसके ऊपर. ही कुडंट डू एनीथिंग. So got restless. Now what to do? गया अपने गुरु के पास. तभी तो मोबाइल नहीं था फोन करने के लिए कि क्या करे, what next, you know. So he had to go. So Gurudev says, okay, it's okay, because Gurudev, you know, always gives you the answer to where you are, you know, stuck. That is what Guru's role is, to push you ahead, you know, keep rowing your boat.
And then he goes to Guru and he says, okay, it's enough, it's okay. तुम क्या करो, उनके सामने जाओ, बंदरों के सामने, और तुम अपनी है ना टोपी फेंक दो निकाल के. They are copycats. They don't know anything. हो गया, उसने भी अपनी टोपी फेंकी, सब बंदरों ने अपनी टोपी फेंक दिया, चले गए सब. मतलब उसने पीछे मुड़ गया, वो तो सब पीछे मुड़ गए, उसने अपनी टोपी उठाई और चला. So it's so simple. But what happens in our life, अपना मन भी ऐसा ही है, जैसे अभी कहा ना बंदर जैसे restless. The restless mind is actually your mind. You have to focus on that. The focus is that searchlight, that is that knowledge light. That knowledge, that consciousness is so luminous. It is so full of light. Now you see when light is over here, सब हमको कितना clearly दिख रहा है. एक बुक है, एक माउस है, एक पेन है, कि है टेबल है, कंप्यूटर है, सब है, सब. Everything I can see so clearly, isn't it? So that is the role. When your consciousness, when you are in the consciousness shines on your mind, you come to know everything what is there in that box. It's an idiot box, but then we have collected all that. All your perceptions, all your ideas, all your feelings, all your emotions, everything you can see what is there in that mind. That restlessness, what is there. Now see how कितने ध्यान से और कितना आप 100% सुन रहे हैं प्रियंका जी. Isn't it? Is your mind going anywhere? Just tell me that. No, it won't go. Why? Because you are totally here, 100%. So another thing is 100%. How to come up to that 100%? Varsha ji told us, go for a walk or take a bath or on agarbatti or make that atmosphere in that way. Because what happens in the whole day, your house also has those vibrations of what you think. Even that is the thing. Wherever we are, we have that vibrations. वो हमारे साथ ही रहते हैं, वो सब हमारे जो thoughts है ना, सब हमारे घर में भी रहते हैं. So clearing that space also will give you that. So everything is mattering, like to come up to that level, small things also matter to make it up 100% for you to get that experience. Okay, so focusing on your mind also comes very well. When you do that, automatically वो बंदर की तरह वो निकल ही जाते हैं, बिल्कुल गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, डिसॉल्व हो जाते हैं. गुम भी नहीं, डिसॉल्व हो जाते हैं बिल्कुल. तो गुरुदेव वही कहते हैं. तो when you are in the meditation also, again it is the same thing. You keep on looking into your mind, which is taking you, is driving you mad, but that mind itself is very good. Later on, this mind only, यही मन है जो हमको यहाँ पे लेके आएगा, बोलेगा चलो जल्दी करो, टाइम होगा, चलो, come on, zoom. There is nothing else. Then you won't like that picture also. Ask anybody of us over here. We don't like the picture because what happens? वही मन जो है पहले हमको ऐसे बाहर लेके जाता था ना, बाहर मुखी था, outside every time, because of those 5 senses. What we are in that waking state, what he said now. The waking state is what? Those 5 senses which drives you outside, going on driving, but you have to take them inside. So what happens? Sunte pehle restlessness aata hai, because all that is there, inside, it will come out. तो जब भी हम meditation में भी बैठते हैं तो गुरुदेव क्या करते हैं? पहले गहरे सांस लो, छोड़ो, जैसे वो बलून में से so your body relaxes, your mind relaxes. The more you relax your body, the more mind relaxes. And the more you relax your mind, that goes to an expansion. That is what we have to actually experience here. So the more your mind is expanded, more it goes into the consciousness. So all those are very much connected. So these are the steps you have to. We are also not come here just achanak उठ के आ गए और हम बैठ गए. It's not that. It's a process. See, when you learn driving also, what happens? How much time does it take to learn or get a driver's license? You are in Canada, you must be knowing. But India में भी अगर हम करते हैं, 3 months तो कहाँ भी नहीं गया. You have to go on, isn't it? So what is there? अभी गाड़ी तो अपने आप चलती है. अभी अगर हम चलाएं गाड़ी तो it's so simple. I know what you have to do. ABC याद है, clutch याद है, सब याद है, it comes. But initially how much it was? बाप रे, वो आ गया, क्या करे, आता नहीं है, या पोल देखेंगे तो पोल की तरफ ही गाड़ी जाएगी, isn't it? जाना भी नहीं है वहां पे, पर गाड़ी चली जाएगी वहां पे. So to learn the driving in this also, how much time it takes us to come out with that. So this is तो ये तो ज्ञान करना है, ज्ञान
सीखना है, उस सब सुपर कॉन्शियस में अपने को एलिवेट करना है, give that time to that. No? How much time do we give for that? How much do we give our input for that? So it's all that again. Again, it's that. You know? और मन के ऊपर थोड़ा सा डिसिप्लिन भी होता है. मतलब एवरीथिंग इज देयर. अभी मोमोक्षु का जब भी हम देखेंगे ना कि who is a मोमोक्षु, that also is there. राजा जनक also asked the question that only, कि ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे प्राप्त हो. His first 3 questions, and whole Ashtavakra Gita has come up with that. You know, so this is the question. This is the question for every sadhak. Because if you don't have these questions, means you are not eligible also to be sitting here. It's like that. Okay. So these are good questions, very nice. But then how do you take it and how do you work on it? It's the thing actually. Okay. So you can keep on asking questions. This is very good actually. Now when you see Deepali, her thumbs are also coming up. Matlab she's just got it, isn't it? So answer is there. Abhi wo itna focus ho gaya. Have you seen the target? I love that. You know, see the center पे, है ना? सोमेश्वर जी ने भी ऐसे ही कर दिया आपको, बिल्कुल एकदम टारगेट हो गए अभी आप, है ना? अभी मन आपका किधर भी नहीं जाएगा. It's targeted. पिन पॉइंट कर दो उसको. Yes, that's the way it is. Yeah. Just enjoy. It's okay. मन जाता है, बच्चे की तरह है, ठीक है. फिर बुलाते हैं, बच्चे कितने, होमवर्क नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, कितना नाटक है, खाना नहीं खाऊंगा, कितना दूध नहीं पीऊंगा, मालूम है माँ आएगी, चलो चलो. मन भी ऐसे ही है, फिर से उसको करने का. Okay. And you know, you see yourself separate. That is what I do. Oh, Sangeeta, okay, come on. Today you have done this. Okay. So you see Sangeeta as different. That is what is your witness consciousness. You be in that, and then you see your mind won't go anywhere. Even if it goes, it's okay. Acha, aaj ye kar liya. It's okay. So yourself separate. You step back and you see yourself. What is the mind doing? The games. Okay. The tantrums. Okay, now it's gone emotional. Oh my God. Oh yeah, that's amazing. Oh, the feelings have come up. Oh, that's great. Okay, so you know, if you do that, that also gives you a very good result. I follow that. So it's amazing with me, you know, that small I is there, Sangeeta, but then I go into my witness and I see, oh, what is Sangeeta doing all that? Ting, 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 ting. So sometimes you have discipline on that. Sometimes you लकड़ी लेके भी मारते हैं, you know, अपने मन के ऊपर. बोलूं क्या, एक स्टोरी बोलूं क्या सोमेश्वर जी? क्विकली बोलती हूँ, क्विकली, क्योंकि यहाँ पे सब इतने ओत प्रोत अभी वो कॉन्शियसनेस में बैठे हैं ना कि उनको जल्दी से समझ भी आ जाएगा. हाँ, तो एक गुरु के पास एक शिष्य, once upon a time, long ago, you know all that. Okay, तो वो समझ लेने का. तो गुरु के पास एक शिष्य जाता है. Okay, I'll tell fast of all. इसे ये जो मेरी बकरी है ना, गोट, गरी है ना, घास में मुंह डालती है. अभी उसको है ना, एक्चुअली में कहा जाना था, राजा ने एक ऐलान किया था कि उसको मैं इतना प्राइस दूंगा, मतलब यू नो, गोल्ड दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, जिसकी बकरी घास में मुंह नहीं डालेगी उसको. अभी बकरी की आदत होती है, वो कितना भी उसको खिलाओ, कितना भी पिलाओ, सामने घास रखो तो मुंह डालेगी. That is the habit and that is the pattern of that, you know, goat. Now what to do? This fellow, this guru's shishya, he was, you know, he also tries a lot, you know, कि क्या करूं, you know, खिला के उसको मोटा कर दिया, सब कुछ कर दिया. फिर उसके सामने घास रखे, फिर वो मुंह डाल रही थी. परेशान हो गया, बोला अभी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, अभी क्या करूं, पर ये मेरे को राजा के पास जाना भी है, you know, I need to earn that prize. So now what to do? So he went to the guru. Guru gave him a stick, एक छड़ी दिया उसको. And he said, जब भी ये गोट मुंह डाले ना घास में, इसको एक छड़ी लो. So he went, he tried all that, you know. So after 15 days, उसके सामने घास रखा, वो जब भी मुंह डाले ना, उसको मारता था वो छड़ी से. तो उसने देखा कि मैं मुंह डाल रही हूँ और मेरे को मार रहा है. तो she stopped putting her
mouth in that grass. And she came up and she didn't eat after that. So after 15 days, and he got the idea. So he went to the Raja and he said, okay, मेरी बकरी घास नहीं खाएगी, भले कितना भी रखो आगे, उसको फीड करके क्या था, ऐसे कुछ नहीं है. He took that stick in his hand, वो जो गुरु ने दिया था. And there he went. All the other competitors were there. सब अपनी अपनी बकरियां लेके आए थे. It was not only him. So when his turn came, and he kept the grass in front of the bakri and he hold the cane in his hand. And the bakri didn't put the mouth in the grass. So he won the prize. So then they asked him, what is it? So he said, my guru gave me a cane. And whenever your goat goes into that grass, puts its mouth in the grass, what are you going to do? Laga bhai. Like that. हमारा मन भी है ना, बार बार उसमें जाता है. गुरु हमको खेल देता है. कौन सी खेल देता है? नाम जपो, प्राणायाम करो, मेडिटेशंस करो, उसके मन के ऊपर अपने काबू रखो. Have that on your mind, and then you will see that mind won't go into that grass. Means he won't put his mouth every time. He is going to be alert, aloof, that in that awareness. So there are 4 A's. Tomorrow I will tell you what are the 4 A's that we should follow. Yeah. Okay. So it's the time, and with this note, really you can sleep well. And I'm telling you, the way all are going to sleep today, वो जो चद्दर ओढ़ेंगे ना, वो अपने ग्रेस की चद्दर ओढ़ के सो जाओ. ये गुरु के ग्रेस में हम सो रहे हैं. और फिर मन क्या है? कुछ भी नहीं है. You are much more than the mind, because you are the one who's giving the energy to that mind. Remember that. So you are more that powerhouse. मन तो कुछ भी नहीं है. आज तुम एनर्जी नहीं तो चलेगा ही. किसकी एनर्जी से चल रहा है मन? It's your energy, right? You are giving that energy to the mind. So it is like that. Okay? We'll end it here with this note. Thank you very much for hearing me. And it was lovely for me to talk to you, Priyanka, really. And for Dipali and everybody who are there with us. Yes, Surya, Savita, Shamli, all of us. Nina. So nice of you to be with us and in this journey. Yeah. Okay. Thank you very much. And Jai Gurudev. Okay, Someshwar ji, is that? Thank you, Jai Gurudev. Very nice explanation by Sangeeta ji. प्रियंका और दीपाली को ऐसा ना लगे कहाँ से मैंने प्रश्न पूछ लिया इन लोग. अच्छा हो गया. आज तो उनकी उन्नति हो गई है. आज तो जो सोएंगे ना इन लोग और जो मजा करेंगे. See, their faces are already radiant. See, Dipali, I can tell you, you just see 10 minutes before what she was. And now Priyanka also. ये लोगों को एक प्रश्न पूछो तो चारों के चारों टूट पड़ते हैं. ऐसा नहीं है प्रियंका. We uplifted you. Okay, so and that is all from my experience. Whatever I told you, it is not a bookish ज्ञान. Book में मेरे देखो सामने और कुछ लिखा हुआ है. I tell you, see this book over, but I didn't say a word also from there. Something else came out. So that is what it is. That is what Someshwar ji is saying. That Shakti, that when you keep on doing, I'll tell you another story also tomorrow. Okay, I have many stories in my software, in my folder. It's coming out now, but I'm stopping it. So we will do it tomorrow. It is also another very important skill for all of us to learn here. We need to be little bit crisp. अपने चर्चा करते समय, आंसर देते समय, we need to be really crisp. Yes. That is also important. The reason क्या होते हैं ना? It's not just that happens with. It happens with me also. Have you noticed this? I keep on speaking and speaking and speaking, and I do not tend to stop. It happens with all of us. It happens, and it's just a matter of being aware about it. कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो फिर वो क्या आ जाएगा? No? That is also very important. Okay. Yes, I get it. Yes. It's very important. Otherwise, what will happen? People will ask one question and then we'll keep on going on that same question. And probably, actually, I heard Usha ji saying this.
when I was talking in front of her, and Anusha ji said, "Oh, I didn't mean to take so much of time. It took so much of time to explain that one question." And then finally she said, "No, no, I didn't actually mean to spend so much of time." So then I realized, oh, probably I spoke too much actually. It was not required actually that much. No, that question didn't wanting that much of insight depth and all that. No. So this is a very, we have to be really aware about all these things. Okay. Yes. With Sure. that note, आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं. पुनः एक बार कल मिलते हैं. जय गुरुदेव. Thank you.